this class on indirect to direct speech. So last class, each one of you saw how we saw rules for conversion from direct to indirect speech. Now we'll take the reverse of it, conversion from indirect to direct speech. We'll discuss the rules. Actually, the rules which apply for conversion from direct to indirect also apply for conversion from direct to direct. Okay. So we'll just continue discussion on those rules and see a few examples. And let's see how it gets along. So let's get started. So, so as I said that the rules for the discussion of conversion of direct to indirect, they are applied in reverse, then they become the rules for conversion from indirect to direct. Okay. So a few changes that we might want to discuss before we take up conversion from direct to direct speech. So there are some changes that happen. Okay. So these have been mentioned for conversion from direct speech to indirect speech. The same applies to conversion from indirect to direct, the reverse. So the first thing that change, first word is this. This means ye. Okay. So ye kisme change ho jayega? Wo. That means that. Because the thing which you are pointing out, this means something that is there in front of you. And that matlab jo cheez aapse dur hai. So जो चीज आपके पास है वो जब आप indirect में जाएंगे तो वो आपसे दूर हो जाएगी because you will not be present at that point. Okay. So this जो हो जाएगा वो that में convert हो जाएगा. But next is here. Here means यहाँ. It will change to there, which means वहाँ. Again the same logic because you leave the site where the conversation happened, you leave it, and you go to some other place. So वहाँ पे that no longer remains here. That becomes there. उसके बाद next word is now. Now means abhi. Now will change to then. Then means tab. Now means ab, and then means tab. So ab will become tab. The next change that happens is today. Today becomes that day. Today means aaj ka. That day means wo din. Because aaj ka din will change to wo din. Because when you will report, that might not be the same day as the conversation had happened. So so today will change to that day because the day on which the speech was the day on which the speech was spoken, the direct speech that was spoken, and you are reporting it, जब आप उसको report कर रहे हैं, but no longer remain the same day. Okay. Then the next change that happens is yesterday will become the previous day or the last. Okay, yesterday means kal ka din. Previous day means uske pichla din. The last day means uske pehla wala din. Okay, same thing. Yesterday means kal. Kal will change to uska pichla din ya uske pehle wala. Because when you will report the speech, the day will change. You know, the speech when it was made, the day was what was yesterday at that time. उस समय जो चीज कल थी, तो वो स्पीच बोली गई, फिर आपने रिपोर्ट किया, तब वो जरूरी नहीं कि वो उसके अगले दिन ही आप उसको या उसी सेम डे आप उसको रिपोर्ट करेंगे, किसी और दिन भी रिपोर्ट कर सकते हैं. तो जिस दिन भी आप उसको रिपोर्ट करेंगे, वो उसके आप जब रिपोर्ट करेंगे तो आप बोलेंगे कि उसने कहा था कि उसके पिछले दिन, मतलब जिस दिन उसने रिपोर्ट किया था, जिस दिन उसने वो स्पीच कही थी, उसके पिछले दिन. ठीक है. Then the next thing that changes is tomorrow. Tomorrow means आने वाला दिन या कल, आने वाला कल. That will change to the next day. Okay, because again when you will report the speech, the day will change. Okay, so because of change in day, tomorrow means आने वाला कल. That will change to the next day. उसका अगला दिन. ठीक है. So जो भी जब भी वो स्पीच बोली गई है, उसके अगले दिन की बात है, the next day. So tomorrow will become the next day. Then the last change that happens is these will change to those. So these matlab ye sab, those matlab those sab, for the same things. So these are the changes that happen when converting from direct to direct, and if you apply them in reverse, comes the rules for conversion from indirect to direct. उसके बाद there are some other changes which also take place when we are converting from direct to direct. So said to, ठीक है, said to किसमें convert हो जाता है? Told or asked, questioned, inquired, whatever. Said to जो है वो it is
Indirect में उसके जो forms हैं, they are just galore. It has galore forms because it has multiple forms when it changes to indirect. Okay. So जो set to है वो sentence के according change होता है, ठीक है. That is why it has multiple or galore forms when it change to indirect. अगर वो कोई question है, अगर कोई पूछा जा रहा है कुछ, तो उसको asked कर देंगे, set to का asked में change कर देंगे. अगर कोई चीज inquire की जा रही है, so we'll change it to inquired. अगर कोई चीज बताई जा रही है तो told. Okay. So set to need not always change to told. It can change to any other form also, any other verb in the past form. ठीक है. So depending upon how, what is the activity that is being done, question पूछा जा रहा है, inquiry की जा रही है, बताया जा रहा है क्या किया जा रहा है, according to the activity, it will change to a form that matches that activity in the verb will be in the past form. Okay. So and then say and says to. ठीक है. Say to या says to, ये दोनों किसमें change हो जाएंगे? Tell. ठीक है. Will say to will change to will tell. So basically वही told का ही simple, जैसे said का simple form, present form क्या होता है? Say. And future क्या होता है? Will say. इसी तरीके से told का present form क्या होता है? Tell. उसका future form क्या होता है? Will tell. Tell, told, will tell. So present में अगर say to या says to है, ठीक है, तो वो tell में change हो जाएगा. ठीक है. और अगर will say to है तो वो will tell में change हो जाएगा. ओके. तो बेसिकली आपको say को tell में change करना है. उसका चाहे सिंपल प्रेजेंट फॉर्म हो, चाहे उसका पास्ट फॉर्म, चाहे उसका फ्यूचर फॉर्म. ओके. सो एंड यहाँ tell पे भी you can have many other forms. It will have again galore forms because you are not just always telling everything. It might also be you're asking something. He asks, he inquires, he questions, है ना, इस तरीके से. So it will have galore forms again in the present case also. Say can change to any form depending upon what is the activity that is being done. If you are asking something, or whether you are inquiring something, or whether informing something. It can also be informs. He informs, or he will inform, or inform. So it will have multiple forms. Said to can change to any form of the verb, the past, present, future form, depending upon what is the tense of the reporting verb. अगला जो change है वो क्या है? Will. Will change to will जो है would बन जाएगा. ये आपको थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना होगा, तो इसका लॉजिकली एक्सप्लेन करना है डिफिकल्ट. शैल जो है वो शुड में, ये सब मॉडल वर्ब्स हैं. शैल विल चेंज टू शुड, मे विल चेंज टू माइट, कैन विल चेंज टू. ओके. सब मॉडल वर्ब्स हैं ये अपने. विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड और मे, माइट, बस ये आपके. के बाद फॉर इंटरोगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड्स स्टार्टिंग विद WH, नो कंजंक्शन इज यूज्ड. इसमें WH शुड आता है स्टार्टिंग में. जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जब डायरेक्ट स्पीच में हमारा जो पहला वर्ड जो होता है, उसके स्टार्टिंग में अगर WH आ रहा होता है, ठीक है, तो तब हम कंजंक्शन नहीं यूज करते. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हम दैट कंजंक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड. फॉर एग्जांपल व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हिच, हु. ठीक है. ये सब जो हैं ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं, और ये इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं व्हिच आर स्टार्टिंग विद WH. ठीक है. और ये सब जब हमारे सेंटेंसेस क्वेश्चंस होते हैं, तब हम स्टार्टिंग में ये वाले वर्ड्स, कोई भी क्वेश्चन आप जब पूछ रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में ये वाले वर्ड्स यूज करेंगे. दैट इज ऑल स्टार्ट विद WH इंग्लिश में. सो व्हेन यू विल convert the speech to indirect form, direct to indirect, then in the indirect speech or the reported speech, it will not carry the conjunction that की जरूरत नहीं है, because यही conjunction का काम करता है. This we also discussed in the last part of this lecture series. For interrogative or question words that seek a yes or no answer, the conjunction used will be whether or if. तो पीछे वाले में ज्यादातर सारे वर्ड्स WH वाले हैं. एंड एक इसमें एक्सेप्शन है, हाउ जो है. ठीक है. हाउ जो है WH से नहीं शुरू होता, बट इवन हाउ के साथ भी
कंजंक्शन हमारा नहीं लगता है। जैसे रिमेंबर हाउ इज आल्सो क्वेश्चन वर्ड, ये भी इस लिस्ट में इंक्लूडेड है जबकि वो WH से शुरू नहीं होता है। We'll see an example later. So next is for interrogative or question words that seek a yes or no answer. The conjunction that will be used, the conjunction used will be whether or if. So ऐसे question words अगर हैं, स्टार्टिंग में अगर मॉडल वर्ब्स आ रहे हैं या कुछ और ऐसे वर्ब्स आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है, तो चाहे मॉडल वर्ब्स हो चाहे ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स स्टार्टिंग, उनका ज्यादातर जब मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब्स हम यूज करते हैं, ठीक है, या तो हेल्पिंग वर्ब्स या फिर मॉडल वर्ब्स, है ना। हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं और मॉडल वर्ब्स को मॉडल ऑक्सिलरी कहते हैं। सो एनीवेज, तो चाहे मॉडल वर्ब्स हो चाहे हेल्पिंग वर्ब्स हो स्टार्टिंग में, अगर इनडायरेक्ट में, तो वो डेफिनेट डायरेक्ट स्पीच में, तो वो जो स्पीच है वो डेफिनेटली कोई क्वेश्चन, बिकॉज़ मॉडल वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स अगर स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो that thing has to be a question. So in such cases normally ये जो questions होते हैं जो कि मॉडल या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उसमें yes या no का आंसर आ रहा होता है, ठीक है। So इसमें नॉर्मली कौन सा क्वेश्चन कैसा होता है, yes या no टाइप्स क्वेश्चन होता है, तभी हम मॉडल या हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चन मॉडल या हेल्पिंग वर्ब से शुरू, उसका जनरली आंसर क्या होता है, yes या no। और इन सच केसेस हम कंजंक्शन को ड्रॉप नहीं करेंगे, बल्कि कंजंक्शन जो है इनडायरेक्ट स्पीच में हम कंजंक्शन वेदर या इफ का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जांपल इस के साथ अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है, क्वेश्चन शुरू हो रहा है डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वेदर और इफ कंजंक्शन आएगा। एम, आर, डू, कैन, डज, ये सारे जितने हैं ये सब हेल्पिंग और मॉडल वर्ब्स। इनसे जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच से जो क्वेश्चन स्टार्टिंग दीज हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल वर्ब्स, जब उसको डायरेक्ट में करेंगे तो हमारा क्वेश्चन मार्क तो हट ही जाएगा, हमारा डॉटिंग वर्ब चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, एंड आल्सो द कंजंक्शन यूज्ड इज वेदर और इफ। इसके एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, उसने मुझसे कहा हमारा नाम क्या है। ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम, इसको डायरेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। व्हाट इज माय नेम किसमें चेंज हो गया, वाज माय नेम। And what my name was, क्योंकि ये हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, we are not asking a question. What was my name नहीं, because this is not a question. क्वेश्चन मार्क हमने हटा दिया, क्यों? The reason being कि हमने said to को ask में चेंज कर दिया। I told you, said to will change to ask. So said to ask में चेंज हो गया तो अब क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत है। क्वेश्चन मार्क जहां हटा तो फिर क्वेश्चन जब हम बोलते हैं तब हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, स्टेटमेंट बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब बाद में। What my name was. What is your name, उसने मुझसे कहा, तो जब मैं उसको रिपोर्ट करूंगा तो योर किस में चेंज रहेगा, फर्स्ट पर्सन, बिकॉज़ आई एम रिपोर्टिंग, उसने मुझसे पूछा है, तो he asked me what my name was because I am reporting, right? एंड यहाँ पे देखिए हमने कोई हेल्प कंजंक्शन यूज नहीं किया, तो सी he asked me what, डायरेक्ट हमने what से शुरू किया बिकॉज़ what कंजंक्शन का काम है। नेक्स्ट एग्जांपल, which is your house, he asked his friend, तो डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, he asked his friend which his house was, ठीक है, which his house was, ठीक है, तो your will change to his because हमारा सेकंड पर्सन जो है थर्ड पर्सन पोजेसिव में चेंज हो, we know these rules, okay, in the previous lecture we have discussed. So which his house was, इस किस में चेंज हो जाएगा, was में, एंड हमारा यहाँ पे कोई कंजंक्शन यूज नहीं होता है। he asked his friend तो asked ही है, तो asked ही रहेगा। he asked his friend which his house, there is no conjunction there, and is got changed to was because the reporting verb was in the past. Next example, they said to her, are you a doctor, उन्होंने उससे कहा कि क्या तुम एक डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, और they उसको इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, they inquired her if she was a doctor। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक हेल्पिंग वर्ब से हमारा जो क्वेश्चन है वो शुरू हो रहा है द डायरेक्ट स्पीच, आर यू अ डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर हो, आर यू अ डॉक्टर, और इसका आंसर क्या है, यस या नो में है, डॉक्टर या तो डॉक्टर है या तो डॉक्टर नहीं। सो दे इंक्वायर्ड हर, सेड टू किस में चेंज रहेगा, ही इज इंक्वायरिंग हर आप क्या हो, इफ शी वाज अ डॉक्टर, ही इंक्वायर्ड हर इफ शी वाज अ डॉक्टर, यहाँ पे दैट की जरूरत नहीं है, दैट की जगह क्या जाएगा, बिकॉज़ हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था हमारा डायरेक्ट। दे इंक्वायर्ड हर, दे सेड टू हर किस में हो जाएगा, दे इंक्वायर्ड, सेड टू विल चेंज टू इंक्वायर्ड इफ शी वाज अ डॉक्टर,
अब देखिए, अब यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते इफ शी अ डॉक्टर बॉय, नहीं, जब इफ आ जाएगा एट दैट टाइम वी नीड टू कीप द हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, ठीक है। सो एक्चुअली जब हम लाइक आप हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब हमारा जैसे दिस दिस इज योर हाउस, नॉर्मल स्टेटमेंट जब हम बोल रहे हैं हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा है, ठीक है, दिस इज योर हाउस, ठीक है। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल में देखिए उसने क्या बोला, विच इनडायरेक्ट में क्या हो गया, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हिच हिज हाउस वाज, ठीक है। जब विच ये सब क्वेश्चन वर्ड जब आने लगते हैं, WH वाले क्वेश्चन वर्ड जब आने लगते हैं, तो तब हमारा हेल्पिंग वर्ड पहले नहीं आ सकता, तब उसको बाद में ही आना पड़ेगा। बट जब इफ, अगर इफ कंजंक्शन लग जाता है, ठीक है, तब देन इट बिकम्स like a normal statement, like she was a doctor, if she was a doctor, ठीक है। ये एक नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब नॉर्मली हमारा बीच में ही आता है, हमेशा बीच में आता है, ठीक है। बस एक जगह बीच में नहीं आता है, कहाँ पे, जब हम इनडायरेक्ट में, जब हम WH वाले वर्ड्स को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तब वो आगे शिफ्ट करता है, लास्ट में चला जाता है। तब हम ये नहीं बोल सकते ही आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हिच वाज हिज हाउस, व्हिच हिज हाउस वाज, ठीक है। सो क्वेश्चंस में भी हेल्पिंग वर्ब बीच में आता है, स्टेटमेंट्स में भी हेल्पिंग वर्ब बीच में आता है ना, और सब जगह बीच में आता है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा बीच में आता है, केवल एक जगह लास्ट में आएगा, जब आप WH वाले वर्ड्स स्टार्टिंग है, जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उन वाले सेंटेंसेस को आप इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, तब हमारा हेल्पिंग वर्ब लास्ट में शिफ्ट होगा। ओके, सो व्हिच इज हाउस वाज, व्हाट माय नेम वाज, ठीक है, दोनों एग्जांपल में हेल्पिंग वर्ब लास्ट में शिफ्ट होगा। थर्ड वाले एग्जांपल में देखिए, दे इंक्वायर्ड हर इफ शी वाज अ डॉक्टर, यहाँ पे इफ शी अ डॉक्टर वाज ऐसे नहीं बोल सकते, ये रॉन्ग, गलत हो जाएगा। They inquired her if she was a doctor. Okay. Next example. So be very careful with where to place the helping verb. Okay. Next example. Harish said to his mother, "Does the milkman come every day?" हरीश ने अपनी माँ से कहा, क्या दूध वाला रोज आता है? हरीश asked his mother if the milkman came every day. So does से शुरू हो रहा है, does is the helping verb. Helping verb जो है question, it's a question and question mark हटाएंगे और said to को चेंज में कर देंगे, reporting verb said to को कर देंगे asked. हरीश asked his mother, यहाँ पे inquired नहीं लिखेंगे, why? Because कोई इंक्वायरी की बात नहीं है, normally he is just asking. हरीश asked his mother if the milkman came every day, because हमारा reporting verb past में था, तो come will be changed to came, and every day will change to, every day will not change, every day ही रहेगा, ठीक है। So Harish asked his mother if the milkman came every day. If the milkman came every day, and does जो है हमारा चला जाएगा, because does तभी आता है जब क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और ऊपर वाले सेंटेंस में आर यू अ डॉक्टर, ये जो आर है, ये क्या हो गया हमारा वॉज में कन्वर्ट हो गया, ये एक हेल्पिंग वर्ब का बी का प्रेजेंट फॉर्म था, और इसमें चेंज हो गया वॉज में, बी का जो पास्ट फॉर्म होता है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब बी होता है ना, उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है, वॉज या वर्ब। तो यहाँ पे शी के साथ हो रहा है, शी इज अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, शी वाज अ डॉक्टर, शी वर अ डॉक्टर, शी वाज अ डॉक्टर। हालांकि फर्स्ट सेकंड पर्सन में हमने आर लिखा है, प्लूरल लिखा है उसमें, क्योंकि सेकंड पर्सन के साथ प्लूरल ही यूज होता है इसलिए, बट हम एक इंसान की बात करें तो थर्ड पर्सन में जाएगा, वाज हो जाता है, वर नहीं, ठीक है। इन द थर्ड एग्जांपल, द लास्ट एग्जांपल, डज की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज डज जो है वो हमेशा तभी आता है जब क्वेश्चन रहता है, उसके बाद क्वेश्चन जब नहीं रहता, अगर क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट में कर देंगे तो डज फिर गायब हो जाएगा, सेंटेंस से ही गायब हो जाएगा। इफ द मिल्कमैन केम एवरी डे, बस वी डोंट हैव टू ऐड एनी हेल्पिंग वर्ब इन द इंडायरेक्ट ऑफ द लास्ट एग्जांपल, ओके। इफ द मिल्कमैन केम, ओके। Few more examples before we close. So I spoke to my mother, when are we going for the cinema this week? इसको हम डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, I inquired my mother when we were going for the cinema that week. Right? तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कोई कंजंक्शन ऐड नहीं किया, and when we were going for the cinema that week, ठीक है।
अब देखिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वर गोइंग, जो हेल्पिंग वर्ब वो फिर से देखिए बीच में आता है। व्हाई? बिकॉज अब हम उसको आगे नहीं लिख सकते, बिकॉज आगे लिखने के लिए फॉर द सिनेमा दैट वीक है, तो उसके साथ हम इस कंडीशन में उसको आगे नहीं लिख सकते। जब अगर सेंटेंस अगर देखिए यहाँ पे दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, हम अगर सपोज ये व्हेन आर वी गोइंग भी होता, ठीक है, तो भी अगर फॉर द सिनेमा दिस वीक नहीं भी होता, तो भी हम इसको जब इंटरव्यू में करते तो कैसे होता? आई इंक्वायर्ड माय मदर व्हेन वी वर गोइंग, व्हेन वी वर गोइंग, ठीक है। यहाँ पे हमारा वर जो है वो लास्ट में है। बी वेरी केयरफुल, देखिए कहाँ पे कभी कभी नॉर्मली हर जगह बीच में ही आ रहा है, कुछ कुछ केसेस में लास्ट में। जैसे ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, यहाँ पे कुछ कुछ केसेस में आपको बहुत ध्यान से नोटिस करना पड़ेगा। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन कि कहाँ पे लास्ट में आएगा। देखिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में लास्ट में नहीं आया, बीच में ही आया। हालांकि हमारा जो क्वेश्चन वर्ड था वो WH से शुरू, ठीक है। तो WH वाले में भी ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा आए, दैट डिपेंड्स के उसको आप लास्ट में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। व्हाट माय नेम वाज को आप लास्ट में लिख सकते हैं। व्हाट वाज माय नेम, ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम, ये स्टेटमेंट से ज्यादा अच्छा he asked me what my name was, ठीक है। तो was को हमेशा, was या वर्ब को हमेशा लास्ट में नहीं रख सकते हैं। कुछ कुछ जो WH वाले क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं के केसेस में आप लास्ट में कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन है, व्हेन के साथ आप लास्ट में नहीं रख सकते, उसको बीच में ही रखना पड़ेगा। व्हाट के साथ आप रख सकते हैं। आई इंक्वायर्ड माय मदर व्हेन वी वर गोइंग, ठीक है। बट या एक चीज है कि जब जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जैसे सब्जेक्ट क्या है हमारा, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है वी, ठीक है। तो जब स्टेटमेंट लिखते हैं तब हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को ना हमारा जो सब्जेक्ट है उसके बाद ही रखते हैं, व्हेन वी वर गोइंग। और जब हमारा क्वेश्चन होता है तब व्हेन आर वी गोइंग। क्वेश्चन होता है तो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब पीछे चला जाता है, हमारे सब्जेक्ट के पीछे चला जाता है, ठीक है। और जब डायरेक्ट में उसको इनडायरेक्ट में करते हैं तो वो सब्जेक्ट के बाद आ जाता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि सेंटेंस के लास्ट में चला जाता है, बट सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा, ठीक है। जैसे प्रीवियस केस में देखिए आप, व्हाट इज योर नेम, व्हाट माय नेम वाज, देखिए सब्जेक्ट के इस जो था पहले सब्जेक्ट के पीछे था, योर, हमारे नाम की बात हो रही है, राइट। सो योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। सो योर इज लाइक अ possessive pronoun, that's like a subject, सब्जेक्ट के पहले आ रहा है व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन। जब उसको स्टेटमेंट में चेंज किया तो व्हाट माय नेम वाज, वो सब्जेक्ट के आगे चला, हमेशा सब्जेक्ट के आगे जाएगा। ये तो पक्का है कि सब्जेक्ट के पीछे रहेगा जब क्वेश्चन रहेगा, और जब स्टेटमेंट रहेगा तो सब्जेक्ट के आगे जाएगा। तो लास्ट में जाएगा कि नहीं, दैट इज अ क्वेश्चन, वो आपको देखना, ठीक है। बट जब स्टेटमेंट होगा तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा। सो आई इंक्वायर्ड माय मदर व्हेन वी वर गोइंग, ठीक है, पहले वी उसके बाद वर, व्हेन वर वी गोइंग, व्हेन वी वर गोइंग फॉर द सिनेमा दैट, ठीक है। तो आर गोइंग कैसे क्या हो गया, वर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन टू क्वेश्चन मार्क ड्रॉप हो गया बिकॉज़ सेट टू बी चेंज टू इंक्वायर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल, द ऑफिसर सेड टू हर हाउ डिड यू मैनेज टू जंप ऑफ द वॉल ऑफ द जेल, इसके डायरेक्ट में करेंगे तो कैसे होगा, द ऑफिसर क्वेश्चन हर हाउ शी मैनेज टू जंप ऑफ द वॉल ऑफ द जेल, how she managed, how did you manage, did manage किसमें चेंज हो जाएगा, managed, ठीक है। did is like a simple past इसमें simple okay, so did जो है वो तब रहता है जब हमारा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं है तो फिर वो did गायब हो जाएगा। और मैनेज जो है इसमें चेंज हो जाएगा, मैनेज लाइक अ सिंपल प्रेजेंट, तो किसमें चेंज हो जाएगा, मैनेज्ड, ठीक है। और डिड विल डिसअपीयर, डिड डिसअपीयर क्यों हो जाएगा, क्योंकि डिड जो है हमारा क्वेश्चन बनाने के लिए काम आता है, एक क्वेश्चन का एक हेल्पिंग वर्ब जैसे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब उसकी जरूरत, जब स्टेटमेंट है तो उसकी जरूरत ही नहीं, वो हट जाएगा। और जब मैनेज है वो किसमें चेंज हो जाएगा, मैनेज्ड, तो सिंपल चेंज टू, ठीक है। सो हाउ डिड यू मैनेज टू जंप ऑफ द वॉल ऑफ जेल, द ऑफिसर क्वेश्चन हर, सो पूछताछ कर रहा है, राइट। तो शी इज लाइक अ प्रिजनर, प्रिजनर से पूछताछ की जाती है, तो ऑफिसर क्वेश्चन हर,
और she managed to jump out the wall. Question. Full stop. ठीक है, question. Here next example. She said to the students, "Aren't you coming for the birthday party?" इसका indirect क्या होगा? She asked the students if they were coming for the birthday party or not. ठीक है. She asked the students. Said to किस में change जाएगा? R क्या है हमारा? Aren't you coming means are you not coming for the birthday party? Because ये are you not को हम लोग लिख सकते हैं aren't. Aren't is like a short. Okay. So are you not coming को लिख दिया aren't you coming. R जो है हमारा helping verb है और helping verb वाला sentence जब indirect में change होगा question helping verb वाला direct speech indirect में change होगा तो हमारा कौन सा conjunction आ जाएगा if या फिर. So she asked the students if they were coming. Are coming किसमें हो जाएगा? Were. So if they subject के बाद हमारा if they were coming for the birthday party or not लिखना पड़ेगा because not है ना हमारा. Are you not coming for the birthday? वो not को last में mention करना पड़ेगा. ठीक है. उसके बाद so are you coming for the birthday party अगर होता, ठीक है, तो आप किसको लिख सकते थे if they were coming for the birthday party. ठीक है. जब उसने बोला है are you not coming for the birthday party, क्या तुम लोग नहीं आ रहे हो, तो इसको आप ऐसे लिख सकते थे she asked the students if they were not coming for the birthday party. ठीक है. बट अगर आप ऐसे लिखेंगे if they were not coming for the birthday party तो ये ऐसा लगेगा कि जैसे वो लोग नहीं आ रहे हैं उस चीज को कंफर्म करने के लिए पूछा उसने. बट ऐसा नहीं है, पूछ रही है कि लोग नहीं आर यू नॉट कमिंग फॉर द बर्थडे पार्टी, लोग नहीं आ रहे हो, लोग आ तो रहे हो ना, इस तरीके से शी इज आस्किंग. ठीक है. इफ यू वांट यू कैन आल्सो चेंज इसको इंटरेक्ट में ऐसे भी कर सकते थे. शी आस्क्ड द स्टूडेंट्स if they were not coming for the birthday party. ठीक है. But normally you don't ask someone if you are not coming. You ask someone if they are coming or not. इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट नॉर्मल्स जो डायरेक्ट स्पीचेस में क्या बोलते हैं, aren't you coming means are you not coming. ठीक है. या are you coming for the birthday party or not. ठीक है. तो एक तरीके से aren't you coming जो है are you coming for the birthday party or not ही, उसी को हम aren't you coming. तो इसीलिए जब इंडायरेक्ट में चेंज होगा तो they were coming for the birthday party. अगर आप if they were not coming for the birthday party लिखेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग थोड़ा सा चेंज होता है, इसलिए उसको नॉट को लास्ट में लिखना है. नेक्स्ट सेंटेंस. कैन द प्लांट ऑपरेशन द ऑफिसर सेड बी रिज्यूम्ड बाय टुडे. ठीक है. तो ऑफिसर ने कहा कि प्लांट ऑपरेशन क्या आज तक दोबारा चालू किया जा सकता है. इसका इंडायरेक्ट क्या होगा? द ऑफिसर इंक्वायर्ड द प्लांट ऑपरेशन कुड बी रिज्यूम्ड बाय दैट डे. ठीक है. सो यहाँ पे कैन से शुरू हो रहा है मॉडल वर्ब से, तो इसलिए हमारा कंजंक्शन क्या आ जाएगा? इफ. और ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, वो क्वेरी कर रहे हैं प्लांट शुरू होगा कि नहीं, बंद हो गया है. ठीक है. सो द ऑफिसर इंक्वायर्ड, is making an inquiry about the plant, that is by inquiry. So the officer inquired if the plant operation can be resumed. क्या हो जाएगा? could be resumed. The plant operation could be resumed. अब ये जो can है इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. जब क्वेश्चन होता है तो can पीछे चला जाता है. बट जब मैंने बोला था ना, जब this is like a helping verb या model verb है. model helping verbs हमेशा indirect में, novels indirect में या फिर जो novel statements होते हैं उसमें हमेशा कहाँ पे आते हैं? सब्जेक्ट के बाद. तो सब्जेक्ट क्या है? प्लांट ऑपरेशन, और उसके बाद है. ठीक है. हमेशा सब्जेक्ट के बाद आते हैं. तो प्लांट ऑपरेशन कुड बी रिज्यूम्ड, पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग या मॉडल. कुड बी रिज्यूम्ड बाय दैट डे. कैन बी रिज्यूम्ड क्या हो जाएगा? कुड बी रिज्यूम्ड. टुडे क्या हो जाएगा? दैट डे. ओके. देन फुल स्टॉप. exclamatory words are used to express imperative sentences in the indirect speech. So जो हमारे जो exclamatory words होते हैं वो कुछ imperative sentences मतलब कुछ आदेश देने के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है. indirect speech. ठीक है. कभी कभार. So imperative mood in the direct changes to infinitive in the indirect speech. ठीक है. So exclamatory words indirect speech में moods को indicate करने के लिए यूज होते हैं, और imperative जो imperative mood होता है जब direct speech में sentences का, वो infinitive में change होता है. Interjections are removed and the sentence is changed to a set. Interjections words को हटा दिया. जब कोई बहुत भावनात्मक चीज को व्यक्त किया जाता है तो फिर interjections को हटा के
हमारे जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो कुछ एक्सक्लेमेटरी वाले वर्ड्स भी चेंज हो जाता है, एक्सक्लेम्ड, ठीक है, और इस तरीके से चेंज हो जाता है। इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हमेशा हमारा जो इंटरजेक्शंस होते हैं उनको हटा के, एक्सक्लेमेशन मार्क हटा के रिपोर्टिंग वर्ब में उसका इफेक्ट को डाला जाता है, उसी को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। और अगर इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें जो हमारा जो इंपेरेटिव मूड होता है वो इंफिनिटिव में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल जब लेंगे तब समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, शी सेड टू हिम, अलास इट इज अ वेरी हार्ड एंडिंग साइट। इसके अंदर क्या होगा, शी एक्सक्लेम्ड सैडली दैट इट वाज अ वेरी हार्ड एंडिंग साइट। तो अलास को हमने हटा दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क हटा दिया, उसको इनडायरेक्ट में क्या कैसे लिख दिया, सेड टू को हमने चेंज कर दिया एक्सक्लेम, तो वो इफेक्ट वहां पे कैप्चर हो गया। इसीलिए अलास और एक्सक्लेमेशन मार्क, शी एक्सक्लेम्ड सैडली, अलास मतलब दुख की बात है, तो शी एक्सक्लेम्ड सैडली दैट इट वाज अ वेरी हार्ड एंडिंग साइट। फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जांपल, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, जस्ट लीव द रूम नाउ, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब इस एक्सक्लेमेशन मार्क को हमने क्या बताया था कि इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क हटा के उसका इफेक्ट को रिपोर्टिंग वर्ब में कैप्चर किया जाता है। और दूसरा चीज क्या बताया था, जो इंपेरेटिव मूड होता है वो इंफिनिटिव में चेंज होता है। तो मूड्स यहाँ पे लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा, द प्रिंसिपल सेड टू की जगह आ जाएगा ऑर्डर्ड, इस एक्सक्लेमेशन मार्क हटाना है। प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर टू जस्ट लीव द रूम देन, नाउ किसमें चेंज जाएगा, देन, और जस्ट लीव द रूम जो हो जाएगा टू जस्ट लीव द रूम, जस्ट लीव क्या हो जाएगा, टू जस्ट लीव, तो लीव जो है वो टू लीव बन गया। तो इंपेरेटिव से, इंपेरेटिव मतलब आदेश देने वाला, टू लग जाता है वर्ब के साथ। Principal ordered the teacher to just leave the room then. Stop. Next example, Avinash said, what beautiful rainbow it is. Avinash exclaimed, what a beautiful rainbow it was. ठीक है, so what a beautiful rainbow it was, और exclamation mark attack हमने exclaimed कर दिया, Avinash exclaimed, ठीक है। Next example, this world, he said, is full of sorrow, wish I was dead, exclamation mark। इंडायरेक्ट में करेंगे तो कैसे हो जाएगा, exclaimed with grief that the world was full of sorrow and wished to be dead, ठीक है। he exclaimed with grief, ठीक है, मैं एक्सक्लेमेशन मार्क हटाना है, उसको दुख को व्यक्त करना है, इसीलिए exclaimed with grief that the world was full of sorrow, because हमारा जो सपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, and wished to be dead, wish I was dead को हम नहीं लिखेंगे, बस उसकी डायरेक्ट उसकी भावना को बता दें, and wished to be dead मतलब वो मरना चाहा, ठीक है, and wished to be dead, because wish जो है वो wished में चलता है। Full stop. Next example, her mother said, you better not go outside today as it is going to rain, ठीक है। इसमें ऑर्डर किया जाता है या एक सजेशन दिया, एक तरीके से सजेशन वाला सेंटेंस, सजेशन वाले सेंटेंसेस में भी वही चीज है जो इंफिनिटिव आ जाता है, ठीक है। her mother advised, क्योंकि उन्होंने एडवाइस किया है, advised not to go outside that day as it was going to rain, not to go outside, you better not go, वो किसमें चेंज हो गया, to go, her mother advised not to go outside that day, this day, that day as it was going to rain, it is going to rain किसमें चेंज हो रहा है, it was going to rain, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में, ठीक है। तो वो किसमें कन्वर्ट हो गया, टू गो, इंफिनिटिव, बस ये एक सजेशन वाला एडवाइस वाले सेंटेंसेस, सजेशन एडवाइस ऑर्डर वाले सेंटेंसेस में इंफिनिटिव आ जाता है, टू लग जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट एग्जांपल, यू नीड टू लीव दिस प्लेस इमीडिएट, सर्जेंट सेड टू द ऑफिसर, से इनडायरेक्ट क्या होगा, सर्जेंट ऑर्डर्ड द ऑफिसर टू लीव दैट प्लेस, नीड टू लीव दिस प्लेस इमीडिएट, नीड टू इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक ऑर्डर की बात है, नीड टू को हटा के हम क्या करते हैं, टू लीव, बस टू लीव, ordered to leave, the sergeant ordered the officer, said to the officer, ordered the officer to leave the place, to leave that place immediately, sergeant ordered the officer leave that place, ठीक है। so you need to leave किसमें चेंज हो गया, to leave, ठीक है। इसमें ऑलरेडी टू लीव था, वही टू लीव, और नीड हटा दिया, यू नीड टू लीव, ये इस चीज को हटा दिया, ठीक है। और यू भी लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हम इसको बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा उससे, ऑर्डर द ऑफिसर टू लीव दैट प्लेस, अब इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है, सर्जेंट ऑर्डर द ऑफिसर दैट शी शुड लीव दैट प्लेस, ये लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब ये तब होता जब यू शैल होता, बट हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यू नीड टू लीव दिस प्लेस, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी नहीं लिख सकते, द सर्जेंट ऑर्डर द ऑफिसर दैट ही नीडेड प्लेस, दैट ही नीडेड, Sergeant ordered the officer that he needed to leave that place immediately.
नीड टू लीव मतलब आप ऑर्डर दे रहे हैं, तो जब आपने ऑर्डर लिख दिया तब नीड लिखने की जरूरत नहीं। Sergeant ordered the officer to leave that place. We did. ठीक है. So in this way, this place जो है इसमें चेंज हो गया that place. Okay. Sergeant ordered the officer to leave that place because this place था वो हमारा that place. Okay. So in this way you see that how we can apply all the rules conversion from direct to indirect very effectively, and we'll be able to convert to the conversion very smoothly. So on this note, I'd like to end today's class and wish you all the best. So I hope these classes have been useful to you, and see you in the next lecture series with another topic. So bye and take care and all the best.